welcome to Obsessing Over Stuff. Let's talk about the recent tariffs that Trump has imposed on Indian exports, which has come as a shock for everyone. Now, why is everyone shocked? Is because the relations between India and US has always been very cordial and diplomatic. हम उनके साथ इतने अच्छे टर्म्स में थे, so it is really hard to believe and hard to understand that why will US favor Pakistan over India. So recently, Trump gave a statement that they have concluded a trade agreement with Pakistan. जिससे वो पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने में उसकी हेल्प करेगा। सो मच सो दैट फ्यूचर में इंडिया को भी ज़रूरत पड़ सकती है पाकिस्तान से ऑयल लेने की। इट्स रियली फनी एंड इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल बिकॉज़ जो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस है दैट इज़ ऑफ ओवर 130 बिलियन डॉलर्स, जबकि जो ट्रेड यूएस के साथ है पाकिस्तान का दैट इज़ ऑफ जस्ट 7 बिलियन डॉलर्स। तो व्हाई विल यू select such a small amount and forget such a big trade that we have with them? And this is the problem. This is the problem with Trump. Why is he behaving so aggressively with India? I think there are two reasons for that. नंबर वन, अभी जो सबसे बड़ा सीज फायर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एवरीवन नोज दैट ट्रम्प ने उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने का ट्राई किया था. And Indian government repeatedly kept telling media that Trump had got nothing to do with the ceasefire between India and Pakistan. So I think he's offended by that. And secondly, Trump is punishing India for supporting Russia and for importing oil from Russia. So what Trump wants is कि India अपना जो oil import करता है रशिया से वो बंद कर दे एंड उससे ऑयल खरीदना बंद कर दे, जिसकी वजह से उसके रिटेलिएशन में यूएस ने 25% टैरिफ लगाया है ऑन ऑल द इंडियन एक्सपोर्ट्स. सब उससे होगा क्या कि जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे यूएस में उन सब में 25% टैरिफ लगेगा, बिकॉज ऑफ विच जो प्रोडक्ट्स यहाँ से पहले 100 में जाती थी अब वो और एक्सपेंसिव प्राइस में जाएगी. तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो जाएगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ही इफेक्ट होगा, बिकॉज जो यूएस के इम्पोर्टर्स है वो इतने हाई प्राइस पे शायद इंडिया से इंपोर्ट करना प्रेफर ना करें. दे वुड रादर गो विद कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड मेक्सिको एंड शायद उनसे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दे. It will really affect India because US is one of the biggest export destinations for us. So obviously जो industries affect होगी like textile, pharmaceutical industries and iPhone के prices इतने बढ़ जाएंगे. So I think बहुत सारा export India का affect होगा because of this tariff. India will obviously refrain from deepening ties with Trump now. अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने. आई थिंक दे आर स्टिल स्टडिंग the market research and everything. They are still studying on what to do about the tariffs. But I think the only reaction that Modi has given is when Modi ji visited US in February, तब ट्रम्प ने पर्सनली बहुत ही पुश किया था मोदी जी को टू बाय F-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम यूएस. सो आई थिंक आफ्टर दिस टैरिफ थिंग we are rejecting buying the fighter jets from them. So Modi is no longer buying those fighter jets from US. So that is the only retaliation that we have done so far. I think the only reason US is favoring Pakistan so much is because they had nominated Trump for the Global Peace Prize Award. And तब से पाकिस्तान US के अच्छे good books में आ गया है. We are still waiting of what will happen because tariff will increase the pressure in Indian economy so much because US is the largest export destination for us. इस पूरे के पूरे जो टैरिफ सिचुएशन है उससे सिर्फ दो ही लोग खुश हैं. सबसे पहले तो पाकिस्तान बहुत खुश है ऑफ कोर्स, बट द मोर शॉकिंग थिंग इज राहुल गांधी गिविंग सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट सेइंग दैट ट्रम्प जो बोल रहा है वो सच सच बोल रहा है एंड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी एंड ट्रम्प इज जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट. ट्रम्प ने ना ही सिर्फ इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया जब और ऊपर से इंडिया को एक डेड इकोनॉमी बोला. I think that is a very stupid statement because according to IMF, India is the fourth largest economy in the world. हम लोगों ने अभी just जापान को क्रॉस किया है 2025 में and we have become the world's fourth largest economy. हमारे ऊपर से सिर्फ US, चाइना और जर्मनी and that's it. And still saying that India is a dead economy is a very stupid statement by Trump. And the fact कि राहुल गांधी इस स्टेटमेंट को पोज करने की बजाय सपोर्ट कर रहे हैं दैट इटसेल्फ शोज के वो कितने स्टूपिड है. बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आपकी कंट्री में कौन सी रूलिंग पार्टी है करेंटली. इंडिया में भले बीजेपी रूल करे या कांग्रेस रूल करे, इट डजेंट मैटर कि रूलिंग पार्टी कौन सी है करेंटली, बट इफ एनीवन इज टारगेटिंग योर कंट्री यू हैव टू अपोज देम. हाउ कैन यू सपोर्ट सेइंग दैट वो स्टेटमेंट सही है जबकि वो स्टेटमेंट है भी नहीं सही.
And Rahul Gandhi literally said that Trump is stating the fact India is a dead economy. I don't understand how can India be the fourth largest economy in the world and along with that be a dead economy simultaneously. इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं और जो रशिया को हम पैसे देते हैं इन एक्सचेंज फॉर देयर ऑयल, उन पैसों के दम पे रशिया अपने वॉर्स लड़ रहा है पिछले 3 साल से। दैट इज द लेवल ऑफ अमाउंट, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट दैट वी हैव गिवन टू रशिया फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स. So I don't understand which dead economy can buy huge oils from Russia with which they are actually fighting big wars right now. The only country that had retaliated this tariff thing from the US is China. Last time जब ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ्स इम्पोज किए थे, तो चाइना ने भी यूएस पे टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे, बिकॉज ऑफ विच चाइना की डाइवर्स इकोनॉमी की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. बट जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है जो यूएस नहीं जा पाए, उसकी वजह से यूएस को बहुत फर्क पड़ा, बिकॉज ऑफ विच दे हैड टू कम टू एन अग्रीमेंट एंड यूएस ने चाइना के टैरिफ्स कम कर दिए थे. अभी तक ट्रम्प ने दोबारा चाइना पे वापस लगाया नहीं है कोई टैरिफ, बिकॉज ही इज अफ्रेड दैट चाइना विल रिटेलिएट अगेन लाइक लास्ट टाइम. ट्रम्प ने गुस्से में आके इंडिया पे टैरिफ तो लगा दिया, बट उसने ये भी नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट यूएस पे भी कितना पड़ने वाला है. जब आप किसी कंट्री पे टैरिफ इम्पोज करते हो तो इट इज़ नॉट देयर कंट्री दैट इज सफरिंग, बट आपकी खुद की कंट्री भी इफेक्ट होती है, बिकॉज आपके कंज्यूमर्स सफर करते हैं, उनको वो गुड्स अब नहीं मिलने वाले जो पहले मिलते थे एक्सपोर्ट से. सो ऑब्वियसली 25% टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगे, बट जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट्स मिलते थे उनके लिए भी अब ये प्राइस बढ़ जाएगा. सो इनडायरेक्टली यूएस को भी कहीं ना कहीं सफर करना ही पड़ेगा. आई थिंक ट्रम्प इज नॉट थिंकिंग इट थ्रू एट ऑल. Trump is picking a fight with one of the largest growing economies in the world, and I think इसका जो हर्जाना है वो यूएस ही भुगतने वाली है. आई रियली होप दैट सम स्टेटमेंट इज गिवन आउट बाय इंडियन गवर्नमेंट. नाउ वे वेटिंग फॉर व्हाट विल हैपन. अभी तक जहाँ तक पता है, आई थिंक वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग importing oils from Russia. That's not stopping. That was the video, guys. Thank you so much for watching.